السلام علیکم جی. وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے. جنگی میدان میں بھارت کو شکست فاس سے دوچار کرنے کے بعد اب پاکستان سفارتی محاذ پر بھی کامیابیوں کی نئی تاریخ رقم کر رہا ہے. ملکی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کی مسلسل تعریفیں اور بھارت کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. ایک اور تاریخی کامیابی سمیٹتے ہوئے پاکستان آج امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ طے کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، جس کا اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی ڈیل مکمل ہو گئی ہے. اب امریکہ پاکستان کے تیل ذخائر بڑھانے کے لیے اقدام کرے گا. مستقبل میں شاید ایک دن ایسا بھی آئے جب پاکستان اپنی سرزمین سے نکلا ہوا تیل بھارت کو فروخت کرے. ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ اس تاریخی معاہدے کا اعلان کرنے سے پہلے بھارت کو ایک بار پھر سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کی معیشت کو مردہ معیشت قرار دیتے ہوئے 25% ٹیرف اور اضافی جرمانے کا اعلان بھی کیا ہے. جنگی میدان کے بعد سفارتی محاذ پر یہ پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آج امریکہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اور بھارت پر ٹیرف اور جرمانے کے اعلانات ہو رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا اس تجارتی ڈیل پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس تاریخی تجارتی ڈیل میں لیڈرشپ رول ادا کرنے پر وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ تجارتی معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مضبوط کرے گا اور مستقبل میں پاک امریکہ پائیدار شراکت داری کو مزید وسعت دے گا. آج ہر پاکستانی کے لیے فخر کا دن ہے کیونکہ قومیں قرضوں سے نہیں باہمی تجارت سے ترقی کرتی. اب دنیا قرض نہیں آپ کے ساتھ دو طرفہ تجارتی معاہدے کی بات کر رہی ہے. معدنیات سے مالا مال ہمارا ملک پاکستان درست فیصلوں سے ہی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکتا ہے. تیل کے ذخائر ہوں یا دیگر معدنیات، پاکستان کسی اور ملک کے ساتھ مل کر ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، مگر اس پر بھی سیاست کی جاتی ہے اور معیشت جیسے سنجیدہ معاملات کو بارگیننگ ٹول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب وقت آ گیا ہے جی کہ ملکی معیشت کے خلاف ہونے والے ہر پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کیا جائے اور ذاتی مفاد کے بجائے پاکستان کی جنگ لڑی جائے. دوسری بڑی خبر خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہونے والے سینٹ الیکشن کی ہے، جہاں پی ٹی آئی رہنما ثانیہ نشتر کے استعفے کے بعد خالی ہونے والی سیٹ پر آج پولنگ ہوئی، جس میں پی ٹی آئی کی نامزد کردہ مشیل یوسفزئی جیت کر سینیٹر منتخب ہو گئی. تیسری اور سب سے بڑی خبر فیصل آباد سے آئی ہے جی، جہاں انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے 3 مختلف مقدمات میں فیصلہ سناتے ہوئے عمر ایوب اور شبلی فراز سمیت 196 ملزمان کو سزائیں سنائی ہیں. سزا پانے والوں میں پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت عمر ایوب، شبلی فراز، حامد رضا، زرتاج گل، کنول شوذب، شیخ راشد، اشرف سونا، رائے حسن نواز، مسز فرا آغا، رائے مرتضی اقبال اور فرخندہ کوکب شامل ہیں، جنہیں 10 سے 30 سال تک سزا سنائی گئی ہے. ان سزاؤں پر وہ پی ٹی آئی ظلم کی دہائیاں دے رہی ہے جو اپنے دور اقتدار میں اسے وکٹ گرنا کہتی تھی. جی بانی پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم اپنے مخالفین کی سزاؤں پر جشن منایا کرتے تھے اور سوشل میڈیا پر کپتان کی بولنگ اور مخالفین کے بولڈ ہونے کی میمز بنا کر واہ واہ کی جاتی تھی. اسی لیے کہتے ہیں دشمن مرے تے خوشی نہ کرنا، سجنا بھی مر جانا. انہی ملکی معاملات پر آج ہم اپنے شو میں سیدھی بات کریں گے، مگر پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے اور مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. السلام علیکم جی. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج سیدھی بات زون میں میرا ساتھ دے رہے ہیں جی ویری آنریبل ذیشان رفیق صاحب ہیں، صوبائی وزیر ہیں بلدیات کے پنجاب کے اینڈ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ بینچز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ذیشان بھائی جوائن کرنے کے لیے. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. میرا ساتھ دے رہے ہیں جی ویری آنریبل محمد ندیم قریشی صاحب، کرائسس میں ہیں، مطلب پتہ ہی ہے ان کی پارٹی کرائسس میں ہے، لیکن وہ ہیں ہمارے ساتھ اور میں ان کے لیے بہت زیادہ دعاگو ہوں. ذرا جلدی میری ان سے بات کرا دیجئے قریشی صاحب سے، تاکہ ہم ان سے ذرا حال احوال جانیں کہ جو بھی باقی جتنی بھی پارٹی رہ گئی ہے اب انہوں نے کیا سوچا ہے.
اس کے علاوہ اظہر جاوید صاحب ہیں برطانیہ سے زوم لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ. انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں, انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ اظہر بھائی جوائن کرنے کے لیے. دور بیٹھے ہیں تو پھر آپ ہی سے شروع نہ کر لیا جائے, وہاں کیا ماحول ہے اظہر بھائی؟ مجھے بتائیں پاکستان کو آج ایک اور سفارتی کا, مجھے پتہ ہے, اچھا مجھے پتہ ہے جو آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہے اور آپ جو مجھے مزید خبریں دینا چاہتے ہیں وہ کس سے ریلیٹڈ ہے, لیکن وہ ذرا ہم پروگرام کے اگلے حصے کے لیے سیو کر لیتے ہیں. پہلے ذرا کچھ بڑی اور ٹھوس بات کر لیتے ہیں. دیکھیں, جنہوں نے گناہ کیے, جن سے غلطیاں ہوئیں, ان کو سزائیں ملنی ہیں, ملنی چاہیے بھی. وہ تو ڈبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ سزا دیر سے کیوں مل رہی ہے, یہ تو پہلے ہونا چاہیے. لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان فرسٹ. اتنی بڑی خبر کہ پاکستان کو آج ایک اور سفارتی کامیابی ملی ہے. another flag in شہباز شریف کیپ. امریکہ کی پاکستان سے ڈیل ہو گئی ہے. اس ڈیل کے بارے میں خود امریکہ بڑھ چڑھ کر بتا رہا ہے, اس کو اون کر رہا ہے. مطلب ٹو بی ویری آنیسٹ میرے لیے بڑا ایموشنل مومنٹ ہے اظہر بھائی. میں نے نہیں سوچا تھا کہ جس طریقے سے پاکستان کی سیاست چل رہی ہے, پاکستان کا کاروبار ریاست چل رہا ہے, کہ میں کبھی یہ خبر بھی دوں گی کہ امریکہ صاحب بہادر اتنا پرائیڈ فیل کر رہا ہے کہ بھائی ہماری پاکستان کے ساتھ یہ ڈیل ہو گئی ہے. مطلب یہ اچیومنٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ دیکھیے بنیش, بہت شکریہ. اور آج جو خوشی کے یہ جذبات ہیں, اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ آپ لوگ تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا انٹریکشن دوسری ممالک کے لوگوں سے بہت کم ہوتا ہے, لیکن ہمارا انٹریکشن ڈیلی بیسس پہ یہاں پر دوسری کمیونٹیز کے ساتھ ہوتا ہے, ہمارا ڈفرینٹ نیشنلٹی کے ساتھ ہوتا ہے, ہمارا یہاں کی حکومت کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. اور ہم پچھلے مجھے تقریباً 21 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ. میں تمام سفارتی جو رپورٹنگ ہے وہ بھی کرتا ہوں, پولیٹیکل بھی کرتا ہوں, یہاں لوکل بھی کی, پاکستانی بھی کی. لیکن گزشتہ 20 سال میں نے اپنے آپ کو اتنا کمفرٹیبل, اتنا پراؤڈ اور اتنا آنریبل کبھی نہیں سمجھا جو میں آج, جب سے پاکستان کی وہ 9-10 مئی کی جنگ ہوئی ہے بھارت کے آزاد, اس وقت سے سمجھ رہا ہوں. اس وقت سے پاکستان کا جو یہاں پر ایک مقام ہے وہ یکدم بہت اونچا ہو گیا. اس کے آپ یہاں پر پہلے کسی بھارتی کے ساتھ, کسی دوسرے کے ساتھ بات کرتے تھے تو وہ ہمیں تھوڑا سا سمجھتے تھے کہ شاید دے آر دا سپر ونس, دا سپیریئرز ہیں. یہاں پہ جب سے پاکستان نے ان کو مارا ہے, ان کے تو آواز نہیں نکلتی, ان سے تو بات نہیں ہوتی. یہ ان کا حال ہے, کیونکہ ہم ڈیلی بیسس پہ ہمیں ملنا بھی پڑتا ہے. دوسرا, یہاں پہ جو لوکل کمیونٹی ہے, جسے ہم یہاں پہ گورا کہتے ہیں, یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہاں کے ادارے ہیں, یہاں کے ممبران پارلیمنٹ ہے, ان میں پاکستان کی قدر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. کیونکہ یہ لوگ خود سینکڑوں سالوں تک جنگیں لڑتے رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ ایک جیتے ہوئے ملک کی, ایک جیتے ہوئے شخص کی کیا ویلیو ہوتی ہے. تو ہماری ویلیو اس وقت پوری دنیا میں بہت بڑھ چکی ہے, تھینکس ٹو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, تھینکس ٹو دا ٹیم لیڈر پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف, جن کے ایک کمبینیشن نے پاکستان کو اس وقت عالمی دنیا میں چیمپئن بنا دیا. امریکہ کی بات کرتے ہیں آپ, امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویری انپریڈکٹڈ, جب تک وہ آ نہیں گئے تھے تو ہم ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں ان کی کیا باڈی لینگویج ہو, کیا پالیسیز ہوں. لیکن جو پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کے اداروں نے, فیلڈ مارشل نے, پوری جو ہماری حکومت ہے, انہوں نے جس طرح انہیں ڈیل کیا, انہیں پاکستان کی حقیقت بنائی, پاکستان کی اہمیت بتائی, اس کے بعد سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف آ گیا. جب سے جنگ بند ہوئی ہے وہ 28 سے 30 بار اس بات کا کریڈٹ لے چکے ہیں جنگ بند کی, اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ گریٹ ہے. یہ بھی ایک بڑا انہونا واقعہ ہے کہ فیلڈ مارشل یا کسی ملک کے آرمی چیف کو انہوں نے بلا کے وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا ہو اور تو لنچ کروایا ہو. پاکستان کی دیکھیں ہمیشہ جو رسپیکٹ ہے وہ اوپر سے چلتی ہے. امریکہ جو ہے دنیا بھر کا تھانے دار سمجھا جاتا ہے, اس کو سپریورٹی ہے, وہ سپر پاور ہے, وہ ٹریول ڈاؤن ہوتی ہے, پوری دنیا دوسری بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, اس کا اثر لے رہی ہوتی ہے. تو اس وقت پاکستان از ریڈی ٹو ٹیک آف. جو اعلان ہوا آج ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, جو ٹریڈ ڈیل پہ بات کی, جو آئل ایکسپلوریشن پہ بات کی, معدنیات پہ بات کی, انشاءاللہ اللہ کسی نظر بد سے بچائے, کسی اور مہم جو سے بچائے, کسی اور دھرنے دینے والے سے بچائے, کسی اور انتشاری سیاست کرنے والے سے بچائے, تو انشاءاللہ اگلے 5 سال میں دعا کرنا مجھے بڑی پوری اچھی امید بات ہے ہوتی ہے, دعا اللہ کے تعالیٰ آپ کی دعاتے ہیں. دعائیں قبول بھی فرمائے. لیکن سر مجھے لگتا ہے کہ اب دعائیں کرنے سے کیا مطلب, یہ تو ایزی کام ہو رہا ہے. ذرا میرے ساتھ رہیے, جو مبارکباد کے مستحق ہیں,
The cabinet minister himself is with me in the studio. This is an honor to have him today on the show. ज़ीशान साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक तो ज्वाइन करने के लिए. सर मुबारकबाद तो मैं आपको देना चाहती हूँ दो चीज़ों की. एक तो जिस तरीके से आपकी सरकार, आपके शहबाज शरीफ, हमारे वज़ीर आज़म मुल्क को लेकर के चल रहे हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब जिस तरीके से पॉलिसी साजी कर रहे हैं और उसमें एक फ्री हैंड दिया हुआ है उन्होंने एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को कि येस यू आर फ्री टू हैव इंटरेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. उसके साथ साथ जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं, हक भी बनता है, लेकिन उसका मवाजना वो भारत के साथ करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बड़े शरारती भी हैं. मतलब कि ये शायद उनकी पर्सनालिटी का एस्पेक्ट मेरे और आपसे छुप गया था, क्योंकि जिस तरह अजहर भाई ने अभी बोला कि पता नहीं था, अनप्रिडिक्टेबल थे कि पता नहीं आएंगे तो क्या होगा, तो ये भी एक अनप्रिडिक्टेबल साइड है डोनाल्ड ट्रंप की कि वो आते हैं जहाँ जहाँ पाकिस्तान का जिक्र होता है वहाँ जानबूझ करके भारत का जिक्र करते हैं और भारत को लेट डाउन करते हैं. आपको भी लगता है कि ये जो एक शरारती अंसर है डोनाल्ड ट्रंप का, इसके तो पाकिस्तान को डबल फ़ायदे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया आपका. सबसे पहले तो आज के इस दिन के हवाले से जो पाकिस्तान की मैं समझता हूँ तारीख़ में एक बहुत बड़ा दिन है कि दुनिया की सुपर पावर ने जिस तरीके से पाकिस्तान को आज रिकगनाइज़ किया है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये 10 मई की जो एक इंडो पाक मार्का हुआ था, जो पाकिस्तान जिसमें फ़तह याब हुआ, तब से लेके हालात बदस्तूर एक तरफ पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं. और आज मैं समझता हूँ कि उसमें एक और ये संगे मील है. सबसे पहली चीज़ ये है कि देखें अल्लाह के फ़ज़ल के बाद ये पाकिस्तान ने ये पोजीशन अर्न की है. पाकिस्तान ने ये पोजीशन बड़ी मेहनत के साथ दुनिया को मनवाया है पाकिस्तान ने कि हम हिंदुस्तान से बेहतर हैं. आज आप ये देखें कि पिछले शायद 2-3 दहाइयों से हिंदुस्तान के ऊपर जो वेस्ट की एक इन्वेस्टमेंट हो रही थी, हिंदुस्तान के हवाले से जो अमेरिका की हिंदुस्तान की तरफ झुकाव था, एक दिन के अंदर अंदर वो सारी की सारी जो थी उनकी एक खोखला जो एक पूरा सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया. और पाकिस्तान जो मैं समझता हूँ कि जो एक ठोस बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान का दफा खड़ा था, पाकिस्तान की कौम खड़ी थी, आज दुनिया ने उसको तस्लीम किया. तो ये इसमें सबकी मेहनत शामिल है, नो डाउट इसके बारे में. देखिए मेन चीज़ ये है कि आज पाकिस्तानी जहाँ जहाँ पे भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में हैं चाहे पाकिस्तान से बाहर है, आज उनका सर फ़ख्र से बुलंद है. और ये बिल्कुल इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मेहनत और काविशें और साथ साथ जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी जो एक सपोर्ट मैं समझता हूँ है, ये दोनों का जो कम्बिनेशन है इसने पाकिस्तान को वो रिज़ल्ट जो है ना वो दिए जो जिसकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं मिलती. और मैं समझता हूँ कि जब आपकी नीयतें साफ़ हों और आप इसके ऊपर तो मैं निशान भाई यही कहूँगी जो अभी अजहर जावेद साहब ने कहा है कि अल्लाह नजर बद से दूर रखे, अल्लाह नजर बद से बचाए, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है. देखें जी पाकिस्तान ने इंशाल्लाह आगे बढ़ना है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है. और मैं देखें इसको पीछे लेके जाऊँगा जी. जब मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान दुनिया में एक सुपर पावर जो एक वो टॉप इकोनॉमीज़ के अंदर दाखिल होने जा रहा था, दुनिया की 24वीं बड़ी इकॉनमी पाकिस्तान बन चुका हुआ था, एशियन टाइगर बनने जा रहा था. लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जो इस मुल्क के साथ किया गया और आप देखें कि उसके बाद जो हमारा मुल्क पस्तियों की तरफ वापस चला गया. और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब दोबारा पाकिस्तान की काबल लीडरशिप के हाथ में बागडोर आई है पाकिस्तान की, जब मुस्लिम लीग नून के हाथ में बागडोर आई है, मुस्लिम लीग नून ने साबित किया और आज फिर मुस्लिम लीग नून ने साबित किया है कि पाकिस्तान को PMLN की लीडरशिप से बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने डिलीवर नहीं किया. और आज फिर हम लोगों ने अल्लाह का जितना हम शुक्र अदा करें कम है कि डिलीवर किया है. और दुनिया जो है ना वो पाकिस्तान को एक ताकत के तौर पे इस खित्ते के अंदर वो आज मान चुकी है. आप बड़े हम्बल आदमी हैं, आप बड़े हम्बल आदमी हैं, एंड आई रियली लाइक यू ऑल्सो, योर अप्रोच जो कि आपकी सियासत में है. लेकिन सर ये मुझे ना थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है. मैं अक्सर ये पूरा हफ्ता लगातार जो भी नून लीग का मेरे पास मेरा भाई आया है, मेरी बहन आई है नून लीग को रिप्रेजेंट करने के लिए, मुझे एक ओवर कॉन्फिडेंस की झलक ज़रूर नज़र आई है. क्योंकि सिर्फ आप नहीं हैं जिनके पीछे पाकिस्तान की जो आवाम है वो गर्विदा है या उनको मानती है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है सानिया नश्तर,
ان کے استعفے کے بعد جو خالی ہونے والی نشست ہے خیبر پختونخوا میں، یہ بہت ریلیونٹ ہے کہ وہاں پر میشیل یوسفزئی کامیاب ہوئی ہیں، اس لیے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے کیونکہ ہم تو پورا ہفتہ کیا ابھی کل 24 گھنٹے ہوئے بمشکل ہم تو یہی بات کر رہے تھے یہاں پہ جو پینلسٹ آ کے کہ جی گنڈا پور صاحب کے اندر اب تو وہ بات نہیں رہی. کل حسن ایوب صاحب تھے, پرویز سندھیلا صاحب تھے, وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جی بس گنڈا پور صاحب تو گئے ہو, یہ کیسے چلے گئے, کیسے گئے ہو, نہیں گئے ہو نا. مطلب ابھی بھی یہ گنڈا پور صاحب کا اثر و رسوخ نظر آ رہا ہے. اگر میشیل یوسفزئی کامیاب ہو گئی ہیں سو اٹ از ناٹ اونلی پی ایم ایل این, اٹ مینس کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک انٹیکٹ جو ایک اثر و رسوخ ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے. دیکھیں جی اس کے ایک اور بھی پہلو ہے. پہلی تو بات آپ نے جو بات کی ہے, دیکھیں اگر ان کی کے پی اسمبلی میں اکثریت ہے تو اوبیسلی ان کو ووٹ پڑنا ہی پڑنا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو وہاں پہ اپوزیشن کا رول ہم لوگ ادا کر رہے ہیں, پی ایم ایل این وہاں پر اپوزیشن میں ہے. ہماری جماعت کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے 2013 کے اندر جب میاں نواز شریف صاحب اپنی باقی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت بنا سکتے تھے, لیکن میاں صاحب نے اعلیٰ اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نہیں بنائی. حالانکہ اگر آپ باقی اتحادی جماعتوں کے ساتھ ملاتے تو ہمارے ووٹ بڑھنے تھے. میاں صاحب نے ان کو پہلے موقع دیا, پی ٹی آئی کو, جن کی کلیئر میجورٹی نہیں تھی لیکن سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ان کو موقع دیا اور ان کی حکومت بنائی. دیکھیں یہ ہے ہماری اقدار. ہم نے جہاں پہ جس کا مینڈیٹ ہے ہم نے ہمیشہ اس کو تسلیم کیا. یہ موقع کا سین چلا گیا. محمد ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی جی بالکل, ذرا میں صرف ان کو انٹروڈیوس کرا رہی ہوں. ویلکم ٹو دا شو. قریشی صاحب ذرا سن لیجئے منسٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں, پھر میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. لیکن سر یہ ابھی بات جو ہے نا ذیشان بھائی, یہ اس سے باہر نکل گئی ہے. میں اس سے آتا ہوں اس پہ. ابھی یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے میشیل یوسفزئی کا جیتنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں. تو ہم نے بھی تحریک عدم اعتماد کی کوئی بات وہاں پہ کی بھی نہیں اس طریقے سے. دیکھیں آپ دیکھیں 2018 میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا, ہمیں سخت اعتراضات تھے, لیکن یہی شہباز شریف صاحب تھے جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان کی خاطر ہمیں چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے. دیکھیں ہم نے کسی پہ الزامات نہیں لگائے, ہم پاکستان کا راستہ رکھنے کی کوشش نہیں کی, تو ہم نے اپنی کوئی سستی سیاست چمکانے کی کوشش نہیں کی. الحمدللہ پاکستان کی عوام اس چیز کو جانتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ اعلیٰ اقتدار کی سیاست کو فروغ دیتی ہے اور ہمیشہ دیتی رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے. اگر وہاں پہ ان کا مینڈیٹ ہے تو ہم نے بالکل اس کو تسلیم کیا ہے. وہاں پہ ان کے پاس نمبر ہے, انہوں نے اگر اپنا سینیٹر منتخب کرا لیا بالکل انہوں نے کرا لیا, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ اعتراضات ہوتی ہیں ہم اوبویسلی وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. ہمیں اپنا موقف پیش کرنے کی جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے ہم رکھتے ہیں بالکل جی اس کے سامنے. محمد ندیم قریشی صاحب السلام علیکم. بھائی میرے آپ کو آواز آ رہی ہے سر, سوال رکھ سکتی ہوں؟ جی وعلیکم السلام, بالکل آواز آ رہی ہے میڈم, فرمائیں. آپ خیریت سے ہیں سر؟ جی بالکل خیریت سے ہوں, جی بالکل خیریت سے ہوں. اچھا, اچھی بات یہ ہے جو کہ آج کی آپ کے لیے سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, ڈیل ہوئی ہے, وہ بڑی زبردست ہے اور پاکستان آگے بڑھے گا تو آپ بھی آگے بڑھیں گے. دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ جو ایک وہ بری خبر آ رہی تھی نا پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی سے متعلق جو 3 مقدمات ہیں ان کے فیصلے سنائے ہیں. سر میں نے پوری لسٹ دیکھی ہے, اللہ کا شکر ہے میرے بھائی ندیم قریشی صاحب آپ کا اس میں نام نہیں ہے, تو آپ کو اس کی بہت بہت مبارکباد ہو. لیکن واٹ از دا مورال آف دا پارٹی سر؟ دیکھیں میری میں ایک تو گزارش کر دوں, پاکستان ہم سب کا ملک ہے. پاکستان ترقی کرے گا تو یقیناً ہم بھی ترقی کریں گے. کون شخص ہے جو اپنے مادر وطن سے, مادر وطن کی عزت سے, مادر وطن کے استحکام سے پیار نہیں کرتا؟ یہ تو بدنصیبی یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسے حکمران آج بذریعہ فارم 47 قابض ہیں جن کی لائف لائن اسی بات میں ہے کہ اپنے اپوننٹ کو وہ اینٹی اسٹیٹ قرار دے, اس کو دہشت گرد قرار دے, اس پہ جتنے سنگین جرائم ہو سکتے ہیں, جتنے جھوٹے الزام ہو سکتے ہیں اس پہ لگائے جائے. یہ کچھ لوگوں کی لائف لائن ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ترقی ہم سب کی ترقی ہے. دوسری بات آپ نے فرمایا, میں چونکہ ایک عام پولیٹیکل ورکر ہوں تو میں اس کلاس کا حصہ نہیں ہوں, میں کسی حکومت کے لیے کوئی ہرڈل کریٹ کروں. تو یہ تو بڑا ایسے فیصلے آ رہے ہیں جو تاریخ اس پر خود فیصلہ کرے گی. یہ ذیشان رفیق صاحب جو ہے نا بیسیکلی خود ایک جینٹل مین ہے, شریف آدمی ہے, میرے بھائی ہیں, مجھے ان کی بڑی عزت ہے. کاش اس طرح کی سوچ اور اس طرح کا فکر سیاسی جماعتوں میں لیڈرشپ میں ہو, تاکہ پھر یہ جو انتقام کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے 40-50 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ, کبھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, کبھی یوسف رضا گیلانی کو, کبھی میر ظفر اللہ خان جمالی کو, کبھی شوکت عزیز کو, جو نشان عبرت بنانے کی پلاننگ رہی ہے خاص جماعت کی طرف سے, اور اب ان کا مقابلہ پنجاب میں بالخصوص اور پاکستان بھر میں تحریک انصاف سے ہے.
तो उनकी तो कोशिश और ख्वाहिश है कि माजी के अपोनेंट्स की तरह हमें भी इबरत का निशान बना दें। मैं तो जब स्टूडेंट था, जब मैं सुना करता था बेनजीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क है, बेनजीर भुट्टो इंडियन एजेंट है, बेनजीर भुट्टो CIA के एजेंट है, मैंने खुद सुना, पढ़ा। उस जमाने में प्रिंट मीडिया ज्यादा था, PTV था, लेकिन मैंने तो बड़ा कुछ देखा सुना। आज शीरो शक्कर है सब लोग। मैंने तो ये भी सुना, आज के प्रेसिडेंट फरमाया करते थे कि ये मौलवी साहब के अंदर इनमें मौलवी की रूह है, ये पाकिस्तान को बुनियाद परस्ती की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज खैर इकट्ठे हैं सब लोग, लेकिन जहां तक इन सजाओं का ताल्लुक है, देखें सियासी वर्कर अपनी जमात के लिए जद्दोजहद करता है, उस जद्दोजहद को ये नाम दे देना कि जी उसने रियासत पे हमला किया, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। रियासत पाकिस्तान बड़ी मजबूत, बड़ी मोतबर और बड़ी मोहतरम है। अच्छा मेरे भाई, आपने ना बड़ी हम्बलनेस का मुजाहिरा किया। आपने कहा कि आप शायद इतने बड़े लीडर नहीं हैं, ये इतना बड़ा नाम नहीं है। सच बताएं, मैं आपको सच बताऊं क्या है, आपने इंतशार की सियासत नहीं की, इसलिए मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब आप रेगुलरली सीधी बात का भी हिस्सा हैं और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, इसलिए आप शायद बाकियों से महफूज भी हैं और शायद आपका नाम इसलिए इस लिस्ट में नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ सर, क्या आप ये नहीं जानते कि उस दिन फैसलाबाद में क्या सूरत हाल थी? हसास इदारे के दफ्तर पर क्या हमला नहीं किया गया? क्या अपने सियासी मुखालिफ राना सनाउल्लाह के घर पर हमला नहीं किया गया? आप इसको जिसको सियासी इंतकाम बनाकर पेश कर रहे हैं कि 196 अफराद को जो सजाएं सुनाई गई हैं, दिस इज़ जस्ट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। सर अपने दिल पर हाथ रख के, खैर अभी आप ऑडियो सोर्स में हैं, मैं आपको देख नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे आप पर एतमाद है, आप अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए कि उस दिन जो फैसलाबाद में हुआ, क्या वो एक पॉलिटिकल मूव थी? नो, इट वाज नॉट। अब बड़े तहम्मुल से सुनिएगा। जी सर। दुनिया भर के लॉज, वो इस्लामिक लॉज हो, वो मॉडर्न वर्ल्ड के लॉज हो, वो कदीम दौर के लॉज हो, हर शख्स को सफाई का हक देते हैं। मैं बुनियादी तौर पे मुतशद्दिद अंदाज़े फिक्र का सख्त मुखालिफ हूँ, लेकिन हमने देखना ये भी है कि इसके मुहर्रिकात क्या थे, क्या वजह हुई कि लोगों के एजिटेशन को इस तरह का रूप देकर, मतलब क्या ये है कि एक ही FIR में 10 लोग नामजद हैं, कुछ लोग उसमें से कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी, तहरीक इस्तेकाम, उनको क्लीन चिट मिल जाती है, ये कौन से आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है, और कुछ लोगों को उसी जुर्म में सजा दे दी जाती है। कुछ लोग एक ही वक्त में, कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तान भर के 50 शहरों में मौजूद हो? ये मुमकिन है? आज आपकी कोर्ट्स बरी कर रही हैं। ख्याल अहमद कास्त्रू एक सूबाई वजीर थे, जैसे जीशान साहब आज सूबाई वजीर हैं, वो आज बरी हुए हैं फैसलाबाद में। उन पर मुकदमा ये है कि वो आपके दोस्त, मेरे बड़े अच्छे दोस्त जैन कुरैशी साहब, आपके शाह महमूद कुरैशी साहब, अभी जो रिसेंटली जो अभी पीछे फैसले आए थे, उनको कोई सजा नहीं हुई है। सो वी हैव एक्सेप्शंस, जो नहीं थे, जिन्होंने ये झंडे नहीं गाड़े, जिन्होंने ये झूठ नहीं बोला कि जी हमने फैसलाबाद फतह कर लिया है, एजेंसियों के दफ्तर पर हमला करके, GHQ के दफ्तर पर हमला करके, जिन्होंने ये आवाजें नहीं लगाई, सर वो आज महफूज हैं और मेरे साथ लगातार शो कर रहे हैं। जी सर। जरा 2 मिनट सुन ले। एक FIR फैसलाबाद में दर्ज होती है जिसमें ख्याल अहमद कास्त्रू, एक साबिक सूबाई वजीर जो कल्चर के थे, उनको नामजद किया गया कि वो 9 मई को जुलूस को लीड कर रहे थे, 10 मई को जुलूस को लीड कर रहे थे, और वो एक हसास इदारे के दफ्तर पर हमला कर रहे थे, जबकि वो 9 मई से पुलिस की कस्टडी में थे। ये तमाम चीजें और रिकॉर्ड है। तो क्या ये इस तरह की FIR दर्ज करवाते हुए जैन कुरैशी साहब फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट हो, क्या शायद फैसलाबाद डिवीजन की हुदूद में भी ना हो, जिसको शाह महमूद साहब पर जो केसेस बनाए गए, वो कराची थे, उनकी एहलिया बीमार थी, तो ये केसेस क्यों बनाए गए इस तरह के झूठे, जिससे कि बरी हो गए। आई गॉट योर पॉइंट कुरैशी साहब, मेरे साथ रहिए, मैं सूबाई वजीर साहब से भी आपको इसका जवाब ले देती हूँ, लेकिन लेट मी गो टू अजहर जावेद साहब। जरा प्लीज मुझे अलाउ करें जीशान भाई, जरा पहले मैं अजहर साहब के पास चली जाऊँ ताकि मैं इतना जरा एक न्यूट्रल ओवरव्यू भी ले लूँ। अजहर साहब, क्या आज ये कहा जा सकता है देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि पहले तो यही कहा जा रहा था ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आज मैं बोल दूं कि देर आए दुरुस्त आइद। क्या रियासती इदारों पर हमला करने वाले अपने अंजाम को पहुंच गए हैं, या आपको लगता है कंसिडरिंग के इन द फर्दर कोर्ट्स, इन द हायर कोर्ट्स, पता नहीं ये सजाएं टिके नहीं टिके, लाइक व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, एक तो मैं आपको बात बड़ी क्लियर कहूँ कि एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज ए जर्नलिस्ट, मुझे इन सजाओं का अफसोस हुआ है। इन सियासतदानों को जो सजा मिली है, जो हमारी सियासत में तशद्दुद का अंसर शामिल हुआ, उसके नतीजे में इन लोगों को जो सजा मिली, उस पर अफसोस हुआ। इसलिए अफसोस हुआ कि जो सियासत है एक मुकद्दस काम है और इसको रियासत की वेलफेयर के लिए, आम लोगों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली 2014 से अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, ज्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं है, 2014 से जो कल्चर पैदा हुआ हमारे मुल्क में, हर चीज को जोरे बाजू हासिल करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान में धरना सियासत का जो कल्चर पैदा हुआ, इस्लामाबाद में 28 या 30 दिन तक जो धरना दिया गया, फिर उसके बाद तसलसल के साथ ये पॉलिटिक्स का एक सिलसिला जो है, और पाकिस्तान की सियासत में जो जहर हुआ, जो सियासी जमातें, जो सियासी रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ जो एक गालम गलोच का कल्चर पैदा हुआ, हमारे सोशल मीडिया को उठा के देख लें, किसी की इज्जत महफूज नहीं रही वो सियासत की वजह से। और आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो सियासत के जो वो आगाज है वो किसने किया, किस तरह किया, क्या हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2014 से सिलसिला, ये जो चलने वाला सिलसिला था, वो 9 मई 2023 तक पहुंचा। ये कोई एक दो दिन की कहानी नहीं थी 9 मई, ये इसके पीछे 8-9 साल का पूरा एक प्रोसेस था, जिसके जरिए ये एक चीज बिठा दी गई इन सियासतदानों के जहन में, या एक तबके या एक जमात के लोगों के जहन में, कि आपने जो भी लेना है ताकत के जरिए लेना है और ताकत के जोर पे हासिल करना है। आपको मेरा ख्याल है याद होगा, लाहौर में आपके करीब ही है, जमान पार्क में क्या सिचुएशन हुआ करती थी, कैसे कैसे मोर्चा बंदी हुआ करती थी, वहां पर क्या क्या कुछ हुआ करता था। जहन साजी उस वक्त रियासत के खिलाफ बगावत की हुआ करती थी, पुलिस ऑफिसर्स को मार पड़ा करती थी। अगर आपको याद हो, आजकल जो आईजी इस्लामाबाद है, उनकी आंख भी मेरा ख्याल है वहां पे जाया हुई थी, और भी सारा कुछ हुआ। तो ये 9 मई को अगर ये कहना कि एक दिन में लोगों के जज्बात की वजह से हुआ, ये गलत है। इसके पीछे पूरी मंसूबाबंदी थी। उस दिन भी बगावत की मंसूबाबंदी थी। सियासी लोग तो शायद इतने उसमें शामिल ना हो, लेकिन जो टॉप पे बैठे हुए शख्स और एक और इदारे के जो लोग थे, शायद मैं क्योंकि पीटीवी नाम ना ले सकूं उस पर, तो उनकी जो मंसूबाबंदी थी, जिस तरह इन लोगों को, सियासतदानों को ग्राउंड लेवल पे इस्तेमाल किया गया। क्या ये हकीकत नहीं है कि यास्मीन राशिद साहिबा लिबर्टी मार्केट में ओपन गाड़ी में ऊपर बैठी हुई थी? क्या ये हकीकत नहीं है कि वहां से लोग नारे लगा रहे थे कि हमने कोर कमांडर हाउस जाना है, हमने यहाँ पे नहीं रुकना? क्या ये हकीकत नहीं है कि यही लोग जो यास्मीन राशिद साहिबा वहां पे लीड करती हुई सामने पहुंची कोर कमांडर सब हाउस आप के? ना दो सियासतदानों के साथ बैठे हुए हैं और मुझे अभी दूसरे सियासतदान के पास जाना है, तो बस मुझे इतना बता दें मुख्तसरन, वेरी क्विकली, क्या ये पॉलिटिकल जो है विंडिकेशन थी? देखिए, पॉलिटिकल विंडिकेशन नहीं, बात यह है कि जो कोर्स ऑफ लॉ है उसने पूरा अपना काम किया। यहाँ बरतानिया में फसादात हुए, यहाँ कुछ ज्यादा देर नहीं हुई, यहाँ पर अदालतें 24-24 घंटे लगी, ठीक है। और उन्होंने कहते हैं ना कि रात को अदालत लगती, यहाँ पे अदालत लगा के उन्होंने लोगों को सजाएं दी। अभी चंद माह पहले यहाँ पे नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में फसादात हुए, वहां पे भी चुन चुनकर जो जो लोग उसमें मुलव्विस थे, इवन पत्थर मारने वाले एक अंडर एज बच्चे को भी सजा हुई। यहाँ पे सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने भड़काया फसादात के लिए, उनको भी सजा हुई। तो आजाद मुआशरे में जो कानून है वो अपना रास्ता लेता है। I got your word, अज़हर भाई, I got your word कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी। मुझे नहीं पता कि नदीम कुरैशी साहब जो मेरे भाई हैं वो कितना आपसे एग्री करेंगे, मैं इसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स ज़रूर ले देती हूँ, लेकिन अलाउ मी टू गो टू ज़िशान साहब। ज़िशान साहब, दो चीज़ें आपके सामने रखनी है, क्या ये सज़ाएँ हाई कोर्ट में कायम रहेंगी, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इसका सीधा सीधा फ़ायदा पीटीआई को ये लगता है कि आपको हो रहा है, आपकी जमात को हो रहा है, यू पीपल आर द बेनिफिशियरी? सर, दोनों चीज़ों को एड्रेस कर दीजिए। मैं बिल्कुल आपके सवाल की तरफ आने से पहले एक दो चीज़ें जो मैं कमेंट करना चाहूँ, जो मेरे भाई नदीम कुरैशी साहब ने जो बात की। देखिए, ये पीटीआई का एक वतीरा बन चुका है, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, असेंबली में खड़े होते हैं तो फार्म 47 की बातें शुरू कर देते हैं। नहीं सर, असेंबली में बात इससे कहीं आगे चलिए, चपेड़े पड़ती हैं अब तो असेंबली में, ये बातें ना करें। आप लोगों ने ऑपोजिशन में भी मारे खाई हैं, आप लोगों ने हुकूमत में हम शरीफ लोग हैं, इसलिए अब मैं आपको ना मैं कुछ हकायक आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी ज़रूर। फार्म 47 की जब ये बात करते हैं, देखिए अगर इनको 8 फरवरी के इलेक्शन पे एतराज़ था, तो इनका सबसे पहला एतराज़ ये बनता था, इनका मामला बनता था कि ये उसके अलावा पटिशन्स करते। आपको मालूम है कि पंजाब असम्बली में
पंजाब असम्बली की टोटल कितनी पटिशन्स हैं जो टोटल सिर्फ दाखिल की गई थी, सिर्फ 36 पटिशन दाखिल की गई थी, और उसमें से 12 पटिशन वो थी जो PMLN के उम्मीदवारान जो हार गए थे उन्होंने PTI के उम्मीदवारान के खिलाफ पटिशन दाखिल की थी। अगर उसको निकाल के पीछे 24 भी रहने दें ना, 24 की 24 को ये बात जो करते हैं, तो फिर भी PMLN की सिर्फ अकेली पंजाब के अंदर 229 तादाद है इस वक्त मेंबरान की। अगर आप 24 भी माइनस करें तो फिर भी हम जो क्लियर मेजॉरिटी से बहुत ऊपर है। अब बात ये है कि बात हमें वो करनी चाहिए जिसके पीछे कोई लॉजिक हो। बुनियादी तौर पे PTI का सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि बिल्कुल बेसलेस चीज़ों के ऊपर एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है, और जब थोड़ा सा वक्त गुजरता है ये एक्सपोज होते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से मुकर जाते हैं, फिर नई जगह चले जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये रिपीटेडली PTI ने जितनी तेज़ी से अपने बयानिए, अपने स्टांस बदले हैं पिछले इनकी कोई 5-6 साल की सियासत के अंदर आप देखें, हर महीने 2-3 महीने बाद एक नई बात लेके आते थे। अब ये अवाम के सामने बिल्कुल जो है ना वो बेनकाब हो चुके हैं। दूसरी बात ये है कि मुझे बताएं कि जब ये 9 मई का वाक़या हुआ, PTI की तरफ से बातें आई कि जी इसके विजुअल एविडेंसेस कहाँ पे हैं, जी इसकी फुटेजेस हैं तो निकाल लें। सारी फुटेज भी सामने आ गई। पूरी दुनिया के अंदर वीडियो एविडेंस जो है ना, अगर वो फोरेंसिक उसको क्लियर करती है तो वो एडमिसिबल है। अगर आप वीडियोस के अंदर देख रहे हैं कि लोगों ने खुल्लम खुल्ला वहाँ पे हमले करवाए, पाकिस्तान के ऐसे हसास जो तनसीबात थी उनके ऊपर हमले करवाए, पाकिस्तान की दफाई तनसीबात की को नुकसान पहुँचाया, तो लोगों ने क्लियर कट देखा। अब जब PTI के पास इस चीज़ का जवाब नहीं बनता तो वो ये कहते हैं, इनके पास ये कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ। ये कहते हैं जी कुछ को क्यों नहीं सज़ा दी, कुछ को सज़ा दी, यानी कि जुर्म मानते हैं ये। अब बात ये है कि कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ लॉ ने सज़ा दी। हमारा तो पहला एतराज़ ये था, हमने खुद भी कोशिश की, इतना डिले आया इस काम में। ज़ीशान भाई, नदीम भाई का एतराज़ ये भी है कि भाई एक बंदे के ऊपर इतनी FIR हैं और वो बंदा वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, जैसे उन्होंने जैन कुरैशी का हवाला दिया, जैसे उन्होंने ये ख्याल साहब का हवाला दिया। आप मुझे बताएं कि 9 मई का वाक़या सिर्फ 9 मई का हुआ है? 9 मई में भी वाक़यात हुए, 10 मई में भी इन्होंने किए। ये तो बेकायदा एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स थे। ये तो जत्था जाता था, एक जगह के ऊपर जाकर हमलावर होता था, उसमें से कुछ लोग लीड करके नई जगह पे जाते थे। ये मल्टीपल जगहों पे लोग गए हैं। अगर वीडियोस में लोग मौजूद हैं तो अब आजकल के दौर में ट्रैवल टाइम कितना लगता है? चंद घंटों के अंदर आप फैसलाबाद से लाहौर आ सकते हैं, लाहौर से फैसलाबाद जा सकते हैं। उस दिन तो इन्होंने जिस तरीके से जो मामला कर रहे थे, इनकी तो कोशिश थी कि ये बाकायदा जो है ना वो हर चीज़ को निस्तो नबूद कर दें। इन्होंने तो पूरी एक प्लानिंग के साथ वहाँ पे ये मामला किए थे। देखिए अचानक होने वाला काम नहीं था। अब तो ये साबित हो गया, बेशुमार PTI के लोगों ने इस चीज़ के ऊपर आके बात की, उन्होंने पब्लिकली आके बात की कि देखिए जी इसकी प्लानिंग की जा रही थी। और मैं समझता हूँ कोई मुहिब्बे वतन वो उसका देखिए जिसका ज़मीर नहीं जागा उसको अपने वतन के साथ मोहब्बत को रिव्यू करना चाहिए। बात यह है कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का ज़मीर जागना चाहिए कि सियासत अपनी जगह, क्या हम अपने दफाई इदारों, अपनी रियासत के ऊपर हमलावर होंगे, अपने मुल्क के ऊपर हमलावर होंगे? फिर देखें ना, सिर्फ ये 9 मई नहीं, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, डिफ़ॉल्ट करवाने के लिए इन्होंने कौन सी तगदोनी की। फिर उसके बाद देखें जी अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करने के लिए इन्होंने कौन कौन सी कोशिशें की। उसके बाद पाकिस्तान कौन सा ऐसा दफाई लिहाज से देखें, खारजा लिहाज से देखें, मुआशी लिहाज से देखें, मुआशरती लिहाज से देखें, हर जगह पे PTI ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की अपनी भरपूर कोशिश की है। तो अल्लाह का करम है कि हम लोग जो है ना वो वापस अपनी जगह पे बड़ी लंबी चार्जशीट दी है मिनिस्टर साहब ने आपके बारे में। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि आपका कोई काम सीधा नहीं है, कोई काम जो आपने पाकिस्तान के लिए जो है वो सही किया हो। कुरैशी साहब रिस्पॉन्ड करें। हमने एक काम बड़ा अच्छा किया है जो अल्लाह पाक ने हमसे लिया है। हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले, पाकिस्तान को लूटने वाले, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के तशक्कुस को तबाह करने वाले सारे लोग बेनकाब कर दिए। और कोई काम हमने किया ना किया ये आज पूरी दुनिया जानती है। आज ये मेरे भाई चूंकि वजीर हैं, इनको इक़्तिदार का, इख्तियार का ये जो नशा है ना, ये सर चढ़ के बोलता है। ये तो मासूम आदमी है, ये तो जरा कम बोल रहे हैं, इनसे भी ज्यादा जोशीले लोग हैं। मैं इनसे गुजारिश करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि जी इतनी पिटीशंस हुई। भाई ये पहला मौका है कि जो आपके
इलेक्शन कमीशन के जो ट्रिब्यूनल्स थे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो थे, उनमें फर्स्ट टाइम रिटायर्ड जजेस को तैनात किया गया। मतलब आपको लॉ बदलना पड़ा, कानून बदलना पड़ा, और फिर सैकड़ों की तादाद में जो एप्लीकेशन थी उनको एंटरटेन ही नहीं किया गया। कौन पूछने वाला है आज यहाँ? कौन पूछने वाला है यहाँ? तो इनके लिए तो रावी चैन ही चैन लिख रहा है। ये तो जिन पे गुजरी है उनसे पूछें। बहुत सारे वो लोग हैं जो असेंबली में बैठकर हमें कहते हैं कि जी फला डिस्ट्रिक्ट 9 मई भी तो नहीं किया ना, इनके लिए तो रावी ने चैन ही लिखना है। अच्छा जी 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 9 मई तो इन्होंने नहीं किया। 12 अक्टूबर आप लोगों ने 9 मई कर दिया सर। सुने देखें। अच्छा। मैं आपसे गुजारिश कर दूं। जी सर। तहरीक इंसाफ का बड़ा सादा सा मुतालबा था। हम जुडिशियल कमीशन की डिमांड कर रहे थे। हमने वो सीसीटीवी फुटेज की मुतालबा किया, रिक्वेस्ट की, नहीं मानी गई। हमने देखना ये है कि सारे माहौल का अच्छा बहुत देखें अलाउ करें, साथ साथ कर लेते हैं ना, साथ साथ इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप वो जो सीसीटीवी फुटेज का कह रहे हैं वो हजारों दफा टीवी चैनल्स पर चल चुकी है। अबे 2 साल पुरानी बात है नदीम कुरैशी साहब। अभी मैं अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा आपको आर्काइव की, पीटीवी की आर्काइव से निकाल के चला दूंगी, लेकिन वो तो मैं इतनी दफा अपने शो में भी चला चुकी हूँ, हर प्राइवेट चैनल ने अपने शो पे चला दी है। और अब कौन सी फुटेज रह गई भाई? अच्छा, उन पिक्स में आपको कहीं शाह महमूद साहब नजर आए, कहीं महमूद रशीद साहब नजर आए? तो उनको सजा भी तो नहीं हुई ना? उनमें कहीं साहब हामिद रजा नजर आए आपको? कहीं अहमद खान भच्चा साहब नजर आए आपको वहाँ तोड़ फोड़ करते हुए, जिनको 10-10 साल की सजाएं थे? देखें, मैं आपको एक गुजारिश कर दूं भाई, जीशान साहब ने देखा है भाई सर, जीशान साहब ने देखा, ये देखे, हाँ जरा सुन ले, एक मिनट के लिए बस आप एक पॉइंट ले लें जीशान साहब का, फिर मुकम्मल कर लीजिए। मियांवाली में अहमद खान भच्चर साहब वहाँ पे मौजूद थे। देखे ना, उनको सजा हुई है, उनको बाकायदा एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए वहाँ पे। नदीम भाई, आप माशाल्लाह बड़े समझदार बंदे हैं, आप इस तरह की बातें तो ना करें ना। अब लोगों ने सारा कुछ देख लिया हुआ है। देखें, आपने कहा ज़ैन कुरैशी वहां पे नहीं थे, बिल्कुल सजा नहीं उनको हुई। देखें, अगर किसी का नाम गलत है सजा नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा नहीं हुई। इन्होंने स्पेसिफिकली जिक्र किया अहमद खान भच्चर साहब का। अहमद खान भच्चर साहब को जिस FIR में, जिस जुर्म में सजा दी गई है, उसमें उन्हें मुकदमे की जिम्नी में 9 माह बाद नामजद किया गया है। ही वॉज नॉट रिपोर्टेड इन FIR। मैं अब किस बात का रोना रहा हूँ सर? देखिए, इस वक्त तो एक ताकत है, इस वक्त तो एक जोश है, जज्बा है। यहाँ तो मुल्क के वजीर आजम को फांसी दी गई, 40 साल बाद उस सजा को सेट असाइड किया गया, माजरत की गई, लेकिन सजा देने वालों को कुछ नहीं कहा गया। ये इस मुल्क का बाब आदम निराला है। 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ का उनकी नस्लों ने भी पाकिस्तान के साथ ये सलूक करने के बारे में सोचा तक नहीं। बेनजीर नारा लगा के गई, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। आसिफ अली जरदारी आए, आगे वो अपनी सियासत को लेकर गए, पार्टी की सियासत को, लेगेसी को आगे लेकर गए, और उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। किसी ने हमला नहीं किया सर, हमले की सियासत किसी ने नहीं की। अभी पाकिस्तान पे जब पाकिस्तान के दुश्मनों ने हमला किया था, ये जो ऑपरेशन बुनियाने मरसूस हमारे नौजवानों ने लड़ा, हमारी फौज ने लड़ा, तो क्या हम पाकिस्तान की अफवाज के साथ नहीं थे? पूरी कौम ने इकट्ठे होकर अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। आप एक पॉलिटिकल एजुटेशन को, ठीक है, उसको वो एक उसने रेड लाइन क्रॉस की, मैं इस बात को मानता हूँ, वो नहीं होना चाहिए था। वो एक अफसोसनाक दिन है, बदतरीन दिन है, लेकिन क्या किसी को सफाई का हक नहीं है? क्या प्रूव करने का हक नहीं है? क्या कानून ये हक नहीं देता किसी शख्स को कि वो अपनी सफाई में कुछ कह सके? सफाइयाँ ही हो रही थी, बहस हो रही थी, जरा हो रहे थे, इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, जो प्रूफ्स थे उनको जो है वो टटोला जा रहा था। और बल्कि ज़ीशान भाई, आपस की बात है, कुरैशी साहब आप भी सुनिएगा, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि वो बेचारे ज़ैन कुरैशी का और ख्याल कैसरो का हमने इतना नाम ले लिया है कि पता चले, कुरैशी साहब तो शरीफ आदमी है, पता चले कि बाद में उनकी पार्टी के जी इन्होंने डील कर लेती है। इन्होंने तो कुछ पता नहीं सर, ऐसे ही हो रहा है। इसीलिए तो मेरे भाई बैठे हैं। नदीम कुरैशी साहब, आप भी भाई हैं मेरे, आप पे कहीं इल्ज़ाम ना लग जाए, आपने कंडेम कर दिए 9 मई को। जी कुरैशी साहब, मैं गुजारिश कर दूं, तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप ने इस बात को तय किया था कि हमें इस तरह की किसी भी कार्रवाई को लोड्स नहीं करना, लेकिन हमने इसके लॉजिक्स जरूर देखने हैं, इसकी वजह जरूर तलाश करनी है, और ये जरूर देखना है कि इस वाक़े के बाद बेनिफिशियरी कौन है। बेनिफिशियरी ये लोग हैं जो आज पाकिस्तान में मुसल्लत हैं, जो 118 रुपए के पेट्रोल पे कहते थे। ये सही बात। सुने तो अगर कामयाब हो जाए तो बेनिफिशियरी हिंदुस्तान होता, मुझे बताएं। बात तो सुने, अगर 9 मई में जो साजिश थी कामयाब होती, खुदा ना खास्ता, तो फिर बेनिफिशियरी हिंदुस्तान होता। अच्छा अजहर जावेद साहब, बेनिफिशियरी पे बड़ी बहस हो रही है, मसला यही है, ज़ीशान भाई ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाते हैं जब बेनिफिशियरी, हर नून लीग वाला आता है बेनिफिशियरी। देखिए ये बेनिफिशियरी, ये जो आप भी अजहर साहब ये जो मुस्कुराते हैं ना शरारती सा, बेनिफिशियरी कौन है? अच्छा जी, ज़ीशान भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम है बेनिफिशियरी। बताइएगा जी, आखिरी 2 मिनट ले लें अजहर भाई जी।
एक जो ये बात करते हैं वो बंदा था नहीं, है नहीं था, उधर दूर था। देखें, इंसाइटमेंट टू वायलेंस भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कि एक्चुअल क्राइम करना। तो आप तहरीक इंसाफ के जो सरबराह थे उस वक्त, उनकी तकारीर उठा के देख लें, जमान पार्क में जो कुछ हो रहा था वहां पे उठा के देख लें, सारी चीजें उठा के देख लें, क्या वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं था? क्या जब वो इस्लामाबाद जा रहे थे पेशी के लिए, जब उन्होंने आखिरी वीडियो अपनी रिकॉर्ड करवाई थी जेल के वो जीप के अंदर से, वो क्या था? तो ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस में भी लोगों को सजा हुई है। और इस सारी सूरत हाल में देखें, बेनिफिशरी की आपने बात की है, बेनिफिशरी जो सिस्टम का होता है ना, वो उसमें गलती किसकी थी? तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, क्या वो एक्चुअल ग्राउंड पर मौजूद नहीं थे? क्या उसके बाद ये आप यास्मीन कुरैशी साहिबा की बात कर रहे हैं, एजाज चौधरी साहब की ऑडियो नहीं आई? अभी मैंने ऑडियो सुनी, वो कंवल चौधरी साहब और एक फरा है, उनकी मैंने ऑडियो सुनी। क्या ये वाकया नहीं हुआ? हालात वाकयात ये साबित करते हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी 9 मई की, जिसका निशाना उस वक्त के आर्मी चीफ को हटाना था। और उसके पीछे जो लोग थे वो भी बहुत सारे लोगों के जो पर्दानशीन है उन पे भी केस चलने लगा है। अब तो ये फिक्र जो है, अगर देखें कानून ने रास्ता लिया है, इन सजाएं हो गई, हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाके ये हो सकता है ये लोग बरी हो जाएं, जैसा नवाज शरीफ साहब पे ये देखा ना, कहते हो हैं। सकता है ये लोग बरी हो देखिए, जाएं। फॉर्म 47 का मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये मुसद्दका मालूमात है कि तरीके जो ये इलेक्शन हुए उस दिन नवाज शरीफ को हराने के लिए, मुस्लिम लीग नून को हराने के लिए कोशिश हुई और इसकी बाकायदा साजिश हुई। अभी वो कैप्टन सफदर साहब का एक इंटरव्यू सुन ले, जो मनसेरा से सीट हारी, उन्होंने जिस शख्स का नाम लिया, मैं तो नहीं ले सकता, वो प्लानिंग के तहत उनको वहां से हरवाया गया। यही हाल नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने से रोकने के लिए कम से कम 15 से 20 सीटें, और मैंने इस चीज की निशानदही जिस दिन इलेक्शन था 8 फरवरी रात 8:30 बजे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा और मरियम औरंगजेब साहिबा के सामने, जो वो मॉडल टाउन में इनका ऑफिस है, वहां सारे बैठे हुए थे। मैं जब रिजल्ट आ रहे थे तो मैंने अपने दोस्तों से कुछ टीवी चैनल्स में बात की कि ये एकदम पीटीआई ऊपर क्यों जा रही है 5% रिजल्ट पे। तो मुझे उन दोस्तों ने बताया कि हमें कहीं से हुक्म आया है कि तहरीक इंसाफ को हमने ऊपर लेके जाना है। ये मैंने 2 दफा ऑन रिकॉर्ड ये चीज है। अब नवाज शरीफ साहब से पूछ लीजिएगा, मरियम नवाज शरीफ साहबा से पूछ लीजिएगा, मरियम औरंगजेब साहबा से पूछ लीजिएगा, ये सारी साजिश हुई थी। ये फॉर्म 47 कुछ नहीं था, ये सारी की सारी जो एक टीवी चैनल से चली कि जी उनको 170 180 सीटें हो गई हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि नून लीग के खिलाफ हुई, नवाज शरीफ के खिलाफ हुई। ये वक्त आएगा, ये खुलेगा कि उस वक्त कौन सा इदारा, कौन से लोग थे जिन लोगों ने ये हरकत की, और इसके वाज़ेह सबूत भी मौजूद है। मैं खुद उस कमीशन में पेश होऊंगा जब इसमें अगर कोई कमीशन बनता है या होगा, तो ये ऑन रिकॉर्ड चीज है। ये फॉर्म 47 का बयानिया है ना, ये 8 फरवरी रात 8:30 मुझे मुझे 9 मुझे क्लोज बजे करना है अजहर भाई, मुझे क्लोज करना है। जिशान ना वो थोड़े से ज़रा अपसेट हो गए। बस मुझे इतना बता दें कि अब तो कोई साजिश नहीं हो रही ना नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ। ये देखें ना, ये चेहरे पे मुस्कुराहट आई है जिशान साहब के। ये बस मुझे जल्दी जल्दी से 30 सेकंड्स है मेरे पास। अब इस वक्त पाकिस्तान के पास बेस्ट कॉम्बिनेशन है। पाकिस्तान आगे जा रहा है, इक्तिसादी मसाइल हल होंगे, सारी चीजें हल हो जाएंगी। आम आदमी को रोटी दें, खाना दें, उसे कपड़ा दें, मकान दें, जो कि मेरे ख्याल फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट की भी कोशिश है। जिशान भाई, अजहर जावेद साहब कह रहे हैं आप अपनी अदाओं पर गौर करें। आई हैव टू रैप। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए जी। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मंडे को दोबारा मुलाकात करेंगे। एंजॉय योर वीकेंड। अल्लाह हाफिज़।